اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرائض وضو وضو میں 4 باتیں فرض پہلا منہ کا دھونا یعنی ماتھے کی جڑ جہاں سے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ کی کھال کے ہر حصے پر ایک بار پانی بہانا. 3 بار دھونا سنت ہے. ان میں ایک بار ایسا دھونا ہے کہ تھوڑا سا ایک بال بھی سوکھا نہ رہے. ٹھیک ہے, چل جائے آگے. دوسرا کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کا ایک بار دھلنا. اب ایک بار کونیوں سمیت کونیوں کے تھوڑا اوپر تک ایک بار یہ دھل گیا نا, ایک بار ہی پانی لگ جاتا ہے پورے میں. 3 بار دھلنے سے کیا وہ پانی پورے میں لگ جاتا ہے صحیح جانے سے, وہ سنت بھی ہو جاتا ہے, فرض بھی ادا ہو جاتا ہے. تو ایک بار دھلنا کیا ہے, فرض ہے. اور ایک ہاتھ دھو کے کسی نے نماز پڑھی تو نہیں, اور ایک ہاتھ پہ چوٹ لگے ہو تو مسا کیسے کریں, ہاتھ کو جگہ ہاتھ آگے رکھ کے اگر یہاں سے لے کر یہاں تک چوٹ لگی ہے نا, کونیوں کا پٹی بن گئی ہے, جیسے یہاں فریکچر ہو جاتا ہے یہاں تک پڑی ہے لیکن یہ انگلیاں کیا ہے ہتھیلی وغیرہ کھلی ہے نا, تو یہ پٹی کی جگہ پہ نا مسا کر لو اور یہ انگلیاں ہے نا یا تو دھو لو یا انگلیوں کو اچھی طرح ڈال کر کے اس کو بھگو لو, ہو جائے گا. ہاں مسا کر لو پاؤں. اگر پورا ہی پاؤں بندھا ہوا ہے نا تو اس میں پورے کو مسا کر لو, ہے نا. نہیں گٹوں تک ہی دھونا, وہاں تک ہی فائدہ ہے. پٹی کو پوری پٹی پہ نہیں کرنا ہے اپنا, جہاں تک فرض بتایا گیا وہاں سے, جیسے یہاں سے یہاں تک ہے. اب کسی نے ماتھے کو چوٹ لگ گئی, پٹی بندھی ہوئی ہے یہاں پہ ہے, تو چہرہ آرام سے ہاتھ میں پانی میں ہاتھ ڈال کے آرام داڑھی وغیرہ دھل لو. اب یہاں پہ چوٹ لگی ہے تو پانی لے کر یہاں پہ مسا کر لو بس. ہاں, اب پورے سر پہ جیسے پٹی بندھی ہوئی کسی کا سر پہ جاتا ہے نا, پورے میں سر کا مسا کر لو کیسے کریں, کوئی پٹی کو پورا مسا کر لیں. تھوڑی بہت لگی ہے یہاں سے یہاں تک ہے. اب یہاں سے یہاں تک جیسے ٹوپی پہننے کی میں نے, اب میرا سر یہاں سے چوتھا حصہ کہاں ہے میرا, یہاں پہ بھی چوتھا حصہ بندہ ہے نا, تو میں یہاں چوتھا حصے کو مسا کروں گا, میں مسا پٹی بندی گئی ہے, پٹی پر بھی کر لو, پورے سر کا مسا کر لو, دقت کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ بچ رہا ہے نا میرا, یہاں پہ تو چوٹ ہی نہیں ہے میری, اور ڈاکٹر نے کہا بھی نہیں ہے کہ نا پانی سے کوئی تکلیف ہوگی تو مسا کر لو. تکلیف پانی, ہاں پانی سے تکلیف ہے, اگر گاؤ بڑھے گا تم پانی کے قریب بھی مت جانا, تو ہے نا صرف مسا کر لو اگر پٹی ہے تو. اور پٹی نہیں ہے, چوٹ ہے, کپڑا وغیرہ باندھ رکھا ہے, ہو سکتا ہے تمہارے کپڑے کے اندر سے پانی چلا جائے تو اس پہ مسا لو, نماز پڑھو, آس پاس مسا کر لو اگر تکلیف زیادہ بڑھتی ہے تو. تیسرا چوتھائی سر کا مسا یعنی چوتھائی سر کا مسا کیسے ہوتا ہے, یہ پورا سر ہے, اس کے 4 حصے کر لو, 1 2 3 4. چوتھا حصہ ایک حصے کا مسا کرنے کے فرق ہے, پورے سر کا مسا کرنا سنت اور مستحب کرنا. چوتھائی سر پر بھیگے ہاتھ کا پھیرنا یا کسی صورت سے کم از کم اتنی جگہ قاطر ہو جانا. چوتھی دونوں پاؤں کا گٹوں سمیت ایک بار دھونا. یہ 4 باتیں وضو میں فرض ہے. دھونا ایسا یہ گٹو ہیں دونوں, اب کسی کی ایریا پٹی ہوئی ہوتی ہے نا تو اس کو صحیح سے دھونا چاہیے. جیسے دراریں چلی ہوئی ہوتی ہے نا ایریا ہے نا, تو اس میں پانی پہنچانا چاہیے, اپنی انگلیوں سے پہنچاؤ اس میں. اور کسی کے کوئی چیز چپکی ہوئی ہے پیر پہ, دال کا دانہ ہو یا چاول کا دانہ, اس کو پتہ ہی نہیں, اس میں پیر دھوئیں گے بس پانی
टूटी के नीचे डाल के डाल दो। सर्दियों में ये होता है। और उंगलियाँ भी सही से धो और पाँव को सही से धो के पीछे अगर पाँव के हथेली के नीचे कुछ चिपका हुआ है ना उसको हटाओ। अगर नहीं हटाया पैर से धो के नमाज़ पढ़ी तो और बाद में पता चला मेरे पाँव में कुछ चिपका हुआ था उसको भी सही से नमाज ही नहीं हुई। अगर तो करते तो ठंडो चिल्ड पानी रख के गरम रख के तब तो से बना के जुम्मा में गैस पे उसको गर्म करके बनाता हूँ। खुद गैस पे गर्म करके उसको बना के आता हूँ। तो घर से बना के आता हूँ। और मैं एक दिन मार लग गया पक्का उतारो लेकिन मेल नहीं मैं इतना जमा हुआ है कि तुम्हारी खाल तक पानी नहीं पहुँचेगा तो उसको उतारना पड़ता है ना। अगर गुस्ल कर रहे हो तुम गुस्ल में 3 फर्ज है कुल्ली करना मुँह भर के 3 बार नाक में पानी चलाना है ना। अब मुंह में कोई ऐसी चीज़ फंसी हुई है ना जिसकी वजह से जड़ में अगर कोई यहाँ पे कोई बोटी वगैरह फंसी हुई है गुटकी का दाना फंसा हुआ अगर उसको नहीं निकाला और कुल्ली सही से नहीं की तो वो गुस्ल नहीं होगा उसका। वो तो सुन्नत है कभी भी करो ना। आगे और उनके सिवा जो कुछ तरीक़ा वुज़ू में बयान किए गए वो सब बातें या सुन्नत या मुस्तहब है और वुज़ू के सुन्नत और मुस्तहबात बहुत है। जो उन सब को जानना चाहे वो बहार शरीयत और इसी उज़ू के धुल जाने का यह मतलब है कि उस उज़ू के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद बूंद लिखा हुआ नहीं। दो बूंद पानी बह जाए भीग जाने या तेल की तरह पानी चपड़ लेने से या एक आध बूंद बह जाने से धोना नहीं होता। और इसमें क्या बताया 2 बूंद पानी की बह जाए आप हाथ पे डाल के देखना वो बह जाए ना 2 बूंद उसको कहते रहना। आप कोई वजू में हाथ गीला कर ले ऐसे कर लें मसई की तरह से पड़ता रहे बस वजू हो गया। हाथ गीला करे ऐसे डाल दे उसको वजू नहीं कहते। पानी लो एक बार डाला 1 बूंद हो गई दूसरी बार डाला दूसरी बूंद हो गई 2 बूंद कर लोगे। हाँ तुम 5 मरतबा अपना गाड़ी है ना तो 5 मरतबा दो 7 मरतबा दो है ना अच्छी तरीके से गाड़ी का खिलाव वगैरह करके चेहरे को अच्छी तरीके से चाय पत्ती बार तुम्हारा बस इतना होना चाहिए कि तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि मैं दाढ़ी या बाल सूखा नहीं रहा हो सके तो टूटी के नीचे डाल के दो उसमें तो एक ही बार मिल जाएगी सारी। आगे उस तरह धोने से वुज़ू या गुस्ल नहीं होता। मसला ऊँट बाख नाखून आँख के ऊपर नीचे के खाल बाल पलक बरूनी जेवरों के नीचे की खाल हत्ते की खाल की नथ का सुराग बताए ना औरतें वो नाक बिगड़ती है ना उसमें सुराग होता है। दाढ़ी मूंछ के बालों के नीचे की खाल की कोई जगह या उन चारों उज़ू की कोई जगह बाल के नोक बराबर भी अगर धुलने से रह गई तो वुज़ू न होगा। जैसे मैंने अंगूठी पहन रखी है ना अब जैसे अंगूठी का निशान बन रहा है अब यहाँ तक अगर वज़ू का पानी नहीं पहुँचाना एक बाल के बराबर भी तो मेरा वज़ू नहीं होगा। किसी ने घड़ी पहन रखी है घड़ी के नीचे जो खाल है उसका पानी नहीं पहुँचा तो वज़ू नहीं होगा। किसी ने जेवर पहन रखे जैसे यहाँ पे वो पहन रहे और टीका वगैरह उसको लगा के उसको हटाया नहीं उसके पूरी मुँह धो लिया तो वज़ू नहीं होगा। अगर यहाँ से वो नथ वगैरह औरत पहन रखी है यहाँ पे खाल है और उसको निकाल के उस सुराख के अंदर पानी नहीं पहुँचाया सही से तो उसका भी वज़ू नहीं होगा। उसको पहन के वज़ू कर लिया तो वज़ू नहीं होगा उसका। या कई बार मुसलमान जो रहते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पे
डालते हैं ना बालिया वगैरह, है ना, तो उसको खोल के उस सुराख में भी पानी नहीं डाला तो वजू नहीं पूरा खोलो है, खोलो पानी बहाना है उसमें। हम्म? हम्म? जो बाहर से हम देवराज पहनते हैं ना, बाहर की चीज़ें जो पहनते हैं उसको असला हाँ। वुजू न हो तो नमाज और सजदा तिलावत और कुरान शरीफ के छूने के लिए वुजू फ़र्ज है और तवाफ के लिए वाजिब है। कुरान भी नहीं छू सकते, वुजू ना हो तो कुरान नहीं सुना रहा। वुजू के करते मकरूहात तो वो अपन अपना उसके दरमियान में वो आ गया ना कपड़ा, वो कपड़ा पार होना चाहिए। आगे बढ़ मकरूहात वुजू के मकरूहात यानी वो बातें जो वुजू में न होनी चाहिए। औरत के गुस्ल या वुजू के बचे पानी से वुजू करना, औरत को पानी बचा मगर कभी ना क्या है तो उसमें पानी है, बाल्टी में बचा हुआ गर्म पानी तो न सकता वुजू कर लेते उससे पानी मुश्तमिल है तो वैसे ही नहीं होगा वुजू। उसमें हाथ डाल दिया, हाथ धोएगा होता लगा, जैसे तो नींदों में से उठ कर देखो पानी गर्म है नहीं, जैसे अपन सुबह सुबह कोई गैस पे पानी लगता है ना गर्म फजर के लिए, अब पानी तो रख देता है, लेकिन सुबह सुबह उठ के उसको गैस पे चढ़ा दिया, अब उसने हाथ धोए ना धोए बस चेक कर रहा है पानी गर्म हुआ नहीं, पानी मुश्तमिल हो गया, उससे वुजू होता है नहीं। खून चेक कर रहे हैं, जो क्या है हाथ धो कर सकते हैं। हाथ अच्छी तरीके से धो के फिर उसमें उंगली डालें ना, फिर वो मुश्तमिल है, मुश्तमिल का आगे आएगा तो इसमें खज्ज नजिस नजिस जगह वुजू का पानी गिरना। गिराना नजिस जगह जैसे बाथरूम में है तो उस जगह तो वजू का पानी गिरना चाहिए, वो मकरूह, ठीक है। और वुजू न खड़ो करा तो हम्म? खड़ो वाशोसन कर रहे वैसे भी देख वो वजू पहन कर करना सुना, खड़े होकर भी करोगे तो वजू हो जाएगा। मस्जिद के अंदर अंदर वुजू करना, जो मस्जिद है इसके अंदर वजू करना करो, बाहर से वुजू के पानी की पत्तरे वुजू के बर्तन में टपकाना। हम यहाँ पर लोटा पड़ा हुआ है तो उससे फिर मुँह धो रहे वो भी मतलब वो निकल रहा है ना पानी, नहीं ले रहे हैं में आ जाओ नहीं वो लोटो लेवा मुंडो धोवा तो पानी में चले जाए तो वजू तो है, लेकिन मकरूह बताया गया है तुम्हें एक मुँह साइड में रखो रोटी से और मुँह में दो पानी उतर रहे है ना, और ऊपर हाथ रखेगा चेहरे को नीचे रखा दो। आगे अगले की तरह कुल्ली का पानी या नाक या खकारिया थूक डालना। जैसे अपन यहाँ पर वजू कर रहे किबला इस तरफ है, अपन सीधा मुँह करके थूक नहीं सकते, नीचे करके थूकना चाहिए। और एक जगह तो ये लिखा हुआ है कि काबा शरीफ की तरफ कोई मुँह करके थूकता है ना तो उसके पीछे नमाज नहीं होती, कोई इमाम कर नहीं सकता चाहिए की बात उसमें जब तक वो तौबा नहीं करे। अगर काबा शरीफ की तरफ मुँह करके तुमने थूक दिया ना तो तुम पर तौबा वाजिब है, तौबा नहीं करोगे तो पीछे तुम्हारी किसी की नमाज नहीं होती, ये मसला है काबा शरीफ की तरफ पकड़ गुनाह गुनाह है, बेअदबी होती है। कुरान शरीफ की तरफ पीठ करना, पीठ में से नहीं है, पीठ में दर्स की तरफ आप बैठ सकते हो, लेकिन पीठ नहीं करनी चाहिए काबा शरीफ की। अगर दर्स वगैरह आप ले रहे हो तो काबा शरीफ की तरफ पीठ कर सकते हो, जैसे इमाम है इमाम दर्स देने के लिए अपने मुक्तदी की तरफ लोग करता है तो वो कर सकते हैं। पीठ करके बैठना और पीठ करके सोना, पीठ करके क्या नाम है कुरान शरीफ की पीठ करना और पाँव बंद रखना, पाँव ऊपर रखना, पाँव ऊपर करके सोना, सब ये बेअदब लोगों की निशानी है, नमाज अगर कोई जाता नमाज नहीं पढ़ी जाए वो पक कर पढ़ सके वो भी नहीं कर सकता। ये तो लिखे पग बैठी हाँ, वो कर सकता है
जो बैठ के पढ़ता है, कुर्सी वाला नहीं कर सकता। कुर्सी वाला आराम से बैठा है और फिर भी उसने पैर सीधे कर लिया काबा शरीफ, वो नहीं कर सकता। कि वो पैर उल्टे ऐसे रखे ना दोनों पे, वो हवा में रखता है ऐसे काबा शरीफ की तरफ, और सामने कुरान शरीफ भी रहती है, तो दोनों और कुरान शरीफ नीचे ऊपर बैठा तो भी वो भी रहती है। फिर वो कुरान की अल्लाह ताला ने दिल में से उसकी मोहब्बत निकाल देता है। तुम अगर बेअदब हो गए ना, जैसे कुरान की इज्जत करना छोड़ दिया है ना, उसको छूना छोड़ दिया है, कुरान को ऐसे वैसे रखने लग गया जैसे आम किताबें रखते हैं, ऐसे रख दिया वैसे रख दिया, और कुरान को साफ करना भूल गए, तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिल से कुरान की मोहब्बत ही निकाल दी, तो तुम्हारा मन ही नहीं करेगा कुरान पढ़ोगे। बेजरूरत दुनिया के बातें करना, बेज़रूरत यानी वज़ू करते वक्त बातें भी नहीं करनी चाहिए। और अगर वजू करा कोई बुला ले लेकिन जा रहा हूँ बेज़रूरत वज़ू के बीच में नहीं जाना चाहिए, वज़ू के बीच में तो वो आज़ा सोचने नहीं चाहिए जब तक पूरा वज़ू नहीं हो। और रन्ना सूट जावा 5 बार कठिन कर बला गया तो वापस शुरू से करो, आगे करो, ज़्यादा ऐसे करो जो मैं हाथ धो लूँ, फिर मुँह धो लूँ, शाम को पाँव धो लूँ, शुरू हो जाएगा। अगर बीच में कुछ हुआ ना हो, सूखना ज़्यादा नहीं सूखना चाहिए। ज़्यादा पानी खर्च करना, इतना कम पानी खर्च करना कि सुन्नतें अदा हो न हो। एक हाथ से तुम के वज़ू में एक बार धोना चलो, एक बार धो दिया बस बहुत है, एक बार धोया है ना, इतना पानी खर्च करना कि सुन्नतें अदा हो। 3 बार धोना सुन्नत है, सब पूरे सब करना सुन्नत है, 3 बार धोना सुन्नत है, लेकिन अगर तुम छोड़ते हो तो ये भी मत करो। एक हाथ से मुंह धोना, वो बात अलग है कि एक हाथ में डालो, लेकिन तुम सर्दियों में एक हाथ को देह में डाल देते हो, मुंह पर पानी मारना, उससे किस हाथ को लेकर के तुम्हारे लिए निकाल। कभी मुंडा पर हाथ करना वो अलग है, वज़ू का अलग है, वो सर्दियों की वजह से है, जैसे मैं भी कभी यहाँ पे कहता हूँ कि चश्मा लेकर ऐसे। अब इसमें क्या है, जो भी पानी लिया, हाँ वो होना तो ये चाहिए कि सर से लेकर यहाँ से यहाँ तक धोए, वो क्या करेंगे फिर हमारे लिए करना हज़रत पे आधा नमाज पे बात करना ये करना पूरा तो नहीं चाहिए। सर्दी की वजह से करते हैं, सर्दी नहीं करना भी ये वो दुआ ही नहीं मांगते ना, दुआ ही नहीं मांगते, वो उनका हाथ ऐसे ही रहता है, हाँ गोदी में रहता है, फिर जैसे ही सुभान ऐसा है हां खत्म। ये करना हाथ पर दुआ करना शुरू करो, और बार करते ये करते दुआ तो कबूल हो ना हो अल्लाह की कुदरत में, लेकिन एक दुआ ये भी करनी चाहिए, अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाए उनकी दुआ करो। पर आपने वज़ू के कतरों को कपड़े या मस्जिद में टपकने देना, अब कपड़ों का भी याद है, जो जवाब अगर एकदम वैसे नहीं होता, जैसे वज़ू के कपड़े हैं, दाढ़ी है हमारे से, जो कपड़े गिर रहे हैं तो वो तो गिर जाते हैं, वो तो कुदरत की है। अब पूछ लिया नहीं पूछा फिर भी मस्जिद में घुस रहे हो, और वो टप्पे हमारे नमाज के अंदर मस्जिद में भी गिर रहे हैं, जैसे ये रहता है दामन, और तुम नमाज पढ़ रहे हो तो ये इसमें भी गिर रहे हैं, तो ये मकरूह है, और मस्जिद में टपकाना तो गुनाह है। और गर्मी में ना आराम हो या नमाज पढ़ना आराम से करें, तो जमा की बन जा रही है ना जैसे और आराम से पहले जल्दी आई आराम हो या हमको कोई कौन चले पसीना टपक को लग गया तो हम उससे कुछ नहीं, वज़ू के पानी से गुनाह जलता है, पसीने से नहीं जलता है। वज़ू कोई बंदा करता है ना तो उसके जो छोटे गुनाह होते हैं ना, गुनाह सगीरा, तो उससे वो गुनाह जलते हैं वज़ू के पानी से, पसीने से कुछ नहीं, पसीने से सिर्फ बदबू ही आती है। वज़ू के किसी सुन्नत को छोड़ देना, ये भी मतलब है, वज़ू की किसी सुन्नत को छोड़ जैसे कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, मिसवाक निकल
वो मकरू है ना, तुम्हें सुन्नत बताई गई है। अगर तुम विश्वास नहीं करो, अभी रोक रहे हैं या सिगरेट लोग बीड़ी पीते हैं, इनके मुँह से बदबू आते हैं, चाहे वो 3 बार या 9 बार कर लिए, तो उनको चाहिए कि ना पहले आराम से गुटखा वगैरह धो के पानी वगैरह सब कुछ करके अच्छी तरीके से कुल्ली करे। अगर बदबू आ रही है ना तो मिसवाक करें, और प्याज खा के आया तो मिसवाक करें, कलेजी खा के आया तो मिसवाक करें, और कुछ आती है ना सब्जी मूली खा के मूली तो मिसवाक करें। फिर तो वो मां नमाज मुझे मूली चक्की बुला वो तो नमाज भी होता है की खबर असल नवाकिए वजू यानी वजू तोड़ने वाली चीजें। पखाना पेशाब, पीते से हवा का निकलना, कीड़ा और पथरी का आगे या पीछे के मुकाम से निकलना, वदी और मदी और मनी का निकलना। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये इंसान के आगे के मुकाम से निकलती है। तो बल्कि